جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک بار پھر آپ سب کو دل کیا تھا گہرائیوں سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ کچھ مزید معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور یقیناً یہ بھی وہ ستارے ہیں جو پورے رمضان ہمارے ساتھ ساتھ رہے۔ ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں، ایک آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ کیا اس رمضان میں، دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر ہوا کرتا تھا، اور اس کا جو جوری پینل تھا وہ 3 معروف شخصیات، علمی اور ادبی شخصیات اس میں تشریف فرما ہوتی تھیں، اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے ایز اے جوری پینل اپنا کردار نبھایا۔ اور آج الحمدللہ ہمارے اس ڈرائنگ روم میں موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت، بلکہ اگر میں آغاز میں ان تینوں ہی شخصیات کے لیے اس شعر سے ان کا تعارف پیش کروں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہد بھائی بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک آپ کو بھی، اور ان تمام لوگوں کو عید مبارک ہو کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھ کے عبادت کی، ریاضت کی۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں قبول کرے، نیت قبول کرے، آمین۔ جو اس عبادت کے ساتھ منسلک ہے۔ کیا کیٹیگورک مبارکباد شاہد بھائی نے دی ہے، اور بس یہی باتیں ہیں جو مسرت بکھیرتی ہیں شاہد بھائی کی، اور آف دی کیمرہ بھی ہمارا یہ محبتوں کا سلسلہ ماشاءاللہ رہتا ہے، بڑی محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں۔ ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام پورے رمضان میں نے شاید اسی ٹائٹل کے ساتھ آپ کا تعارف پیش کیا ہے۔ رضوان زیدی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت رضوان بھائی عید مبارک۔ مبارک آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ اور آپ کی جانب سے؟ میری جانب سے یہی ہے کہ جن جن گھروں میں عید کی سچی خوشیاں ہیں، پروردگار ان آنگنوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین، خوشیوں سے مرصع رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہمارا جوری پینل ہوا کرتا تھا، اس کے تیسرے ایسے ہوسٹ جو ARYQTV کے بھی سینئر موسٹ ہوسٹ ہیں، اور اکثر آپ کے خوابوں کی اگر تعبیر بتانا ہو تو حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ آپ کا ایک شورائے آفاق ہمارا پروگرام ہے جو ابھی تک الحمدللہ آن ایئر ہوتا ہے۔ آشکار داور صاحب تشریف فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آشکار بھائی بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو مبارک، سب دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک۔ زبردست۔ اور ہمارے ایک نوجوان ہوسٹ جنہوں نے ریسنٹلی ARYQTV کو جوائن کیا، لیکن اپنے جو ایبلٹیز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، اس کی بدولت بہت جلد ARYQTV میں ہوسٹنگ ڈپارٹمنٹ میں اپنی جگہ بنانے اور اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہوئے، جناب محترم ولید بھائی تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت عید مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، اور جتنے حاضرین ہیں، جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں، سب کو بہت بہت عید مبارک۔ الحمدللہ ARYQTV ایک فیملی کی طرح ہے، اور یہ میں بالکل دل کیا تھا گہرائیوں سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، چاہے رئیس بھائی ہوں، سلمان گل نورانی ہوں، ولید بھائی ہوں، ہمارے عدنان بھائی ہوں، اور یہ عاجز ہو، خاکسار ہو، ایک محبتوں کا ایک سلسلہ ہے الحمدللہ، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا، ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا۔ الحمدللہ فصیح بھائی بیٹھے ہوئے، اور میں چاہتا ہوں کہ فصیح بھائی نے ابھی بریک پہ جب ہم تھے تو کہا کہ بھائی عید والا ایک ماحول بنایا جائے، تو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیونکہ میں ہوسٹ ہوں تو میری ذمہ داری زیادہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آغاز کر دیتا ہوں۔ ایک بڑا لطیفہ ایسا ہے جو شاید آپ کے چہروں پر بڑی مسکراہٹ بکھیر سکتا ہے۔ ایک محلے میں پپو بھائی ہوا کرتے تھے، وہ پپو بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے اور جا کر ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں ایک ایسا نسخہ آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسا ٹریٹمنٹ بتائیں کہ میری عمر جو ہے وہ لمبی ہو جائے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ شادی کر لیں۔ پپو بھائی نے کہا کہ اچھا، تو شادی کرنے سے میری عمر جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، میری جو ہے وہ بڑھ جائے گی؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی یہ خواہش ختم ہو جائے گی، اور امید ہے کہ آپ کے چہروں پر۔ لیکن ہماری دعا ہے کہ پپو بھائی اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ پپو بھائی کا ذکر ابھی آپ کر رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، لیکن میں نے اس سے کنیکٹ نہیں کہا۔ اور شاہد بھائی جو ہے نا، بالکل کہتے ہیں نا فرنٹ مین پلیئر ہیں ہمارے، اور بالکل بھی کسی کو نہیں بخشتے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے بڑے ہیں، سینئر ہیں، ہم نے بڑا سیکھا ان سے، ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تکلف میں ہم مارے جاتے ہیں اور آپ چوکا لگا دیتے ہیں، حضرت وسیع ہوتا ہے۔ فصیح بھائی کوئی ایسا آپ کا ایسا واقعہ بچپن کا، کوئی شرارت کی مسکراہٹیں بکھیریں سر آپ بھی چہروں پر؟ بابا جی چلے گئے، وہ میں نے ان کی خدمت میں ایک عرض کرنی تھی کہ ایک عامل سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ میری جیب خالی نہ رہے۔ لیکن وظیفہ پڑھنے کے بعد میری جیب تو بھری رہی، لیکن غیر ضروری کاغذات سے بھری رہی، ضروری کاغذات تھے وہ اس میں پھر بھی نہیں آئے۔ بابا صاحب جو ہیں ان کی جیب بھری رہتی ہے وظیفے بتانے کے بعد، نہیں، غیر ضروری کاغذات سے بھری رہی، ضروری کاغذات آنے تو وہ نہیں آئے اس میں۔ اچھا، وہ عیدی وغیرہ آپ لے رہے تو ان سے کیا ہوا اس کا؟ نہیں، وہ اقبال بھائی یہاں سے جب گئے، اقبال بابا، تو وہ یہ کہہ کر گئے کہ سیٹ وہی ہے جہاں سے آپ دیں گے، اور آپ نے کہا تھا، تو اب جو میری جگہ آ کر یہاں براجمان ہوگا وہ انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے لیے 2 شعر تیار کیے ہیں، بے تکلف ہیں، آپ مان لیا۔ اس میں جی حضوری تھوڑی ہے،
ये तकलीफ़ें आप मान लिया, ईद में जी हुजूरी थोड़ी है, आपसे मिल के ईद होती है, कोई ईदी ज़रूरी थोड़ी है। ये तो टरकाने वाली बात है, ये तो टरकाने वाली बात है। अब उनके खलीफा है, बहुत उन्हीं की फीकी ईद ठीक है है। और मेरी सपोर्ट में आ गए हैं फसी भाई, और फसी भाई की तरफ से इंशाल्लाह आप मैं डरखा चाहता हूं रहे हैं। भरपूर प्रेशर नहीं, जाए। चोरी की जमीन पे शेर कहना जरूरी है। वाह वाह वाह, इसी तरह अगर एक दो जुमले और जुड़ जाएं तो बड़ी जबरदस्त ये बात हो जाएगी और बड़ी आप मुस्कुराहटें। बाबा जी के खलीफा हैं, कुछ इनायत फरमाएं। अच्छा, कुर्सी पे बैठ के खलीफा हो जाते हैं? अब वो बना के गए, ये बता रहे हैं सुमेर भाई। जी जी अच्छा, तो जो वो करके गए वही मैं करूँगा। आप फिर वजीफा ही बता दें। वजीफा दूसरी शादी का कम से कम आप ये बता सकते हैं शायद भाई आप आपको करनी है दूसरी शादी, आप ये बताइए। है आपको करनी है दूसरी शादी? असल में इसका ये हम वजीफा आपको बताएंगे, आपको दूसरी शादी करनी है, पहले ये बताइए। आप मतलब आप इकरार तो कीजिए। आप जवाब तो देने थे, मतलब आप भरपूर इस कोशिश में हैं कि मेरी ईद खराब। हजरत ये ईद है, बकरा ईद थोड़ी है। अरे वाह 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 अरे वाह, फसी भाई, क्या बात है शाह जी। यानी कि जुमला भाई, ये बना, आप चाहते हैं कि मेरी ईद उल फित्र जो है वो ईद उल अजहा बने। बकरा ईद अभी इकरार करेंगे तो बकरा ईद पे काम आएंगे। ये शादी को जिक्र छेड़कर आप तो बकरा ईद बना रहे हैं उनकी। बाबा साहब जो वजीफा देते हैं वो देते हैं किसी को पढ़ने के लिए, पढ़ता वो है, फ़ायदा बाबा जी को होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप अगर चाह रहे हैं कि सबकी पकड़ हो जाए और सबकी कुर्बानी हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाभी घर पर आपसे पूछ लें कि भाई बड़ी आप तरगीब दिला रहे थे सबको दूसरी की, क्या ख्याल है आपका और दिल में क्या बात है, तो देखिए- आपकी भी पकड़ हो सकती है। देखिए, मेरी बेगम को मेरी चच्ची ने एक बात समझा दी थी शादी के वक्त। उसने कहा इनके चचा सारी ज़िंदगी कहते रहे मैं दूसरी शादी करूँगा, नहीं कर सके। ये भी अगर कहें ना तो समझ लेना ये दूसरी शादी करने वाले लोग नहीं हैं। असल में मैं बताऊं, शाहिद साहब का एक वाकया मुझे बड़ा पसंद है। अरे ये हुई ना बात, जबरदस्त तालियां शाहिद आपके साहब लिए। एक दफ़ा अपने बेगम से बड़े खुशगवार मूड में थे। इनकी आदत है दोस्तों की दावत बहुत करते हैं, भाई बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती है, ठीक, तो बड़े कन्विंस करे थे बेगम अब को। महरूम है अभी तक। मेरा एक दोस्त है रणवा है, रणवा में जिसकी बीवी मर गई वो है, सवाब भी मिलेगा और दोस्ती भी रहेगी, यार दावत कर लेते हैं उसकी। बेगम ने सब मुंह चढ़ाया, कह रहे बेगम मान लिया करो, कभी मुझे भी रणवा होना है तो मुझे कौन बुलाएगा। सही बात। अरे यार अच्छा, जबरदस्त। अरे वाह। अगर आजकार भाई इसके साथ वो एक आध शेर बड़ा जबरदस्त है, आपने सुन लिया तो मैं पढ़ शायद रहा इस गुफ्तगू से वो कनेक्ट भी हो जाएगा सर। वो मैंने लिख लिया था कि उसमें ये है कि शौहर और बीवी की बात चल रही है, तो आई थिंक ज़मीर जाफरी का शायद ये शेर है, ज़मीर जाफरी साहब का, कि शौहर लाख भला चाहे तो क्या होता है, शौहर और लाख बुरा भला तो चाहे क्या होता है? क्या होता है, वही होता है जो बेगम ने कहा होता है। वही होता है जो बेगम ने कहा बेगम ने हो। कहा होता है। एक तरफ माँ है और एक तरफ है बेगम, एक तरफ माँ है और एक तरफ है बेगम, जैसे आलू कोई सैंडविच पे दबा होता है। हाय, 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 हाय। जैसे आलू कोई सैंडविच दबा होता है। बाद शादी के यही कहते फिरे हर शौहर, बाद शादी के यही कहते फिरे हर शौहर, वक्त शादी से पहले ही का अच्छा होता है। आहाहाहा। और लेकिन फिर भी नाजरीन हम ये कह सकते हैं और कहना भी चाहिए कि वो लड्डू है जो खाने से पहले भी बंदा पछताता है और खाने के बाद भी, और जिस पछतावे का यहाँ इजहार बरमला इजहार किया जा रहा है। लेकिन 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 चोरी के लड्डू पे सब भागते हैं। हाँ, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी को यहाँ से घर में इस गुफ्तगू से एक लतीफ़ा मुझे इजाज़त है। अरे जबरदस्त। इस गुफ्तगू से मुझे एक लतीफ़ा उसके बाद फसी भाई जबरदस्त। फसी भाई की तरफ आ रहा हूँ। वो हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं, यकीनन उन्होंने दूसरी शादी की, तो मेरे बहुत बड़े नामी गिरामी दोस्त हैं, नाम लेना शायद मुनासिब नहीं। उन्होंने दूसरी शादी की तो मुझे कहने लगे कि यार नाम क्या रखा जाए। अपनी यकीनन मोबाइल तो घर में भी इस्तेमाल होता है, चेक भी हो जाता है। मैंने कहा यार उसका नाम रख लें NCP। ये आप गिलगित सवात वाली साइड पे जाते हैं ना, तो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है NCP, यानी वो गाड़ी अपनी होती है लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं होता, नॉन कस्टम पेड। सही सही। ये ना जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने शादी तो की होती है लेकिन वो नादरा में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक। NCP बहुत सारे लोगों की होती है, बीवी अपनी होती है लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड अब ये पता करना ज़रूरी है कि है किस किस के पास। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूँगा। जी जी जी। मैंने बचपन में छोटा सा था, मैं यकीनन मैं समझा कह रहा है मैंने बचपन में भी शादी कर ली। अच्छा, मैं समझ रहा गुजारिश कुछ और मतलब हो रही है, दूसरी वाली हो रही है। मैं बच्चा था छोटा, तो मैं शाह साहब को उस वक़्त से हिफ़्ज़ के ज़माने से मैं सुना करता था, और यकीनन उसके बाद से काफ़ी ज़िंदगी गुजर गई। तो आज हम लाइव महफ़िल में बैठे हैं, वैसे भी ईद का दिन है, बड़ा दिन है, खुशियों का दिन है, तो मैंने सारी ज़िंदगी शाह जी का कलाम सुना हिफ़्ज़ के ज़माने से। मेरे घर में, मेरी गाड़ी में शाह जी अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, गूंजते रहते हैं।
उस रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। वाह वाह, कहने शौरा आफाक कलाम, 2 मिसरे अगर आपकी इजाज़त से। शौरा आफाक कलाम फसी भाई के, और यकीनन आज भी समातें मुंतज़िर रहती हैं। बिस्मिल्लाह। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फसी भाई ये कलाम आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र करने की सआदत हासिल कर रहे थे, तो चंद अशार हैं जो, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं 2 अशार आपकी समातों की नज़र करता कि बताऊँ क्या नेमतें मिली हैं यकीन खजरा तेरी गली में, सुरूर बख्शा तेरी गली ने, और सुकून पाया तेरी गली में। हासिल कलाम शेर कि खुदा की मर्जी खुदा की हिकमत खुदा ही जाने वलेकिन हमने, खुदा की मर्जी खुदा की हिकमत खुदा ही जाने वलेकिन हमने, सरों का काबा हरम में देखा और दिलों का काबा तेरी गली। अल्लाह आपको सलामत रखे, और इसी तरह आप हुजूर का जिक्र करते रहें, हमारे दिलों को खुश करते रहें, हुजूर की इश्क की शमा रोशन करते रहें। जज़ाकल्लाह। और हबीब भाई क्या फरमाइएगा, इतनी ज़बरदस्त बातें। देखें ये ARYQ TV का हुस्न है कि हम ईद मना रहे हैं, बिल्कुल कुरान की भी बात हुई, हदीस की बात हुई, नात हुई, और जो हम आपस में जिस तरह चिट चैट कर रहे हैं, ये सारी खूबसूरत चीज़ें यकीनन ARYQ TV का खासा है। सही बात है। मैं चाहता हूँ इसमें अपना हिस्सा मिलाया। हज़रत मैं क्या बोलूँ, ये सब मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। आज बुजुर्गों की तरफ से भरपूर इजाज़त है, और उससे शफकत आया हुआ है दिल फसी में भाई वो की बोल तरफ। दीजिए। दीजिए। फसी भाई तो कह रहे हैं आज उसकी खैर नहीं है जो नहीं बोलेगा। बस कुछ सोच समझ के बोलिएगा, घर भी जाना है। जी जी। अच्छा ये वो कह रहा है जिसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। वो कह रहा है। चंद शेर पेश कर रहा हूँ दाग दिलवी के। मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जा चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, हाय हाय। मोहब्बत रंग दे जाती है दिल जब दिल से मिलता है, मोहब्बत रंग दे जाती है दिल जब दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। वाह, कहने और हमारा साफ दिल है, वाह, हम तो मिलते हैं सफाई से, हमारा साफ दिल है, हम तो मिलते हैं सफाई से, अब इसमें यार तू जाने कि तू किस दिल से मिलता है। हाय 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 हाय, क्या कहने जी, ज़बरदस्त। और इनके अशार से बस एक ये शेर मिला के, और ये ट्रिब्यूट है फसी भाई के लिए कि हिसाब ARYQ TV का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। अच्छा मैं फसी भाई के हवाले से अर्ज़ करूं जी जी। कि हज़रत ने फरमाया कि बचपन से देखा, लेकिन मैंने फसी भाई को जवान देखा जब इन्होंने पहली मरतबा मुकाबला जीता था PTV पर। अल्लाह माशाल्लाह। मैंने इनसे तस्करा किया, आप ब्लैक कलर ये के कपड़े क्लियर कर पहने हुए दें, थे। इनको जवान देखा या आप जवान थे? अब मैं अगर कहूँगा बच्चे था तो फिर ये बुरा मानेंगे। नहीं ये सही बात है यार, ये हर कोई ये कह रहा है मैं बच्चा था, ये मैंने गलत इनसे अर्ज किया कि आप ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, कहने लगे टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होता था, मैंने ब्राउन कलर के कपड़े पहने। अच्छा फसी भाई अपना काम देखें जो करते हैं ना, फसी भाई का अपना काम है, क्या बात है। किसी दूसरे को वो काम करने के लिए मजबूत फेफड़े चाहिए, हाँ, तो फसी भाई माशाल्लाह काम करते हैं। अल्लाह की अता है। वैसे एक बात है, एक बात ये है कि नाथखानी के हवाले से हमने देखा है, नाथखानी के हवाले से सुना है, माशाल्लाह फसी भाई का एक बहुत बड़ा मुकाम है, और सिद्दीक इस्माइल साहब का, फिर आने वाले नए में महमूद अशरफी साहब का, इन सबका बहुत अच्छा मुकाम है। फसी भाई की ख़ास बात यह है कि ये कहते हैं ना, सोए बंदे को उठाना, ये सोए दिलों को जगह देते हैं। हाय हाय, एक आज शेर जुमला पढ़ते दिया हैं नाथखानी का। वाह, वाह, अब इनके बड़े भाई साहब बदियुद्दीन सरवर्दी साहब मेरे एनडी के सीनियर साथी होते थे, वो माशाल्लाह अरियो कुरान माशाल्लाह वो जी तिलावत फरमाते थे, हाँ, क्या अच्छे दोस्तों में थे। तो उस वक्त फसी भाई को हम जानते भी नहीं थे, लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई तो मैं तो भाई इनका शदाई हो गया। आप समेत दुनिया भर
हजरत की शदाई है, क्या कहने, अल्लाह ने क्या इज्जतें दी हैं। माशाल्लाह। एक मैसेज सर, एक सिंगल लाइनर आपकी तरफ से। माशाल्लाह पहले ही सीनियर लोगों ने बहुत अच्छी अच्छा, ये बताएं, मजा आ रहा है आपको? लग रहा है ना हम ड्राइंग रूम में बैठकर ईद लोगों में मना रहे बैठने हैं, से कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बस सब दोस्त बैठकर यहाँ पर आपस में एक बड़े दूसरे। लोगों में बैठने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और माशाल्लाह मैं सीख रहा हूँ। क्या बात है। और यार हम कितने बड़े हो गए यार, हर आदमी ही कह रहा है बुजुर्गों मैं तो वो आपके आगे गलती बच्चे से ही- गलती से उनकी उंगली मसला आपकी ये नहीं तरफ है हो कि गई शायद आप भाई, बड़े हो गए, गलती से। मसला ये है वो आपसे सीख रहा है। आपने उल्टा समझ लिया। भी यार, यार यार इनसे भी पहले तसी के लिए तशवीश इस हमारे बात जूरी की है। पैनल के जज आज भी तशरीफ फरमा है, उन्होंने फौरन तशवीश इस बात की कि वो आपसे सीख रहा है। सफर तो हमारा छोटा भाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी, पढ़ता है। जबरदस्त, बहुत अच्छा कवर किया है शाहिद भाई, एक्सीलेंट। और ये होना चाहिए ज़बरदस्त। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अभी भाई, आपका भी, ज़फ़र भाई, इसी अंदाज से दीन इस्लाम की सब अपनी अपनी जहद से, अपने अपने अंदाज से दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ही अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फरमाए, आपके वालिद गिरामी, आपके वालिद गिरामी गरीक रहमत करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उनके दराजात बुलंद फरमाए। और जिस अंदाज से आप इस खूबसूरत मिशन को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह इसमें और तक़वियत दे, और बरकत दे, और तरक्की दे। हमारी बहुत दुआएं हमारे आपके साथ, और जब भी इंशाअल्लाह इस तरह का गुलदस्ता सजेगा तो इस शुक्रिया के साथ कि इंशाअल्लाह हमेशा की तरह आप लोग हमारे साथ शामिल होंगे, इन खुशियों के सफ़र में हमेशा शाना बशाना रहेंगे, और इसी तरह यह कवाली फलेगी फूलेगी। और मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ अलहाज अब्दुल रऊफ़ साहब का, जो चेयरमैन है ARY QTV के। इस दौरे पुरफ़ितन में जिस अंदाज से नात की खिदमत हो रही है, कुरान की हो रही है, हदीस की हो रही है, कव्वाली भी एक ऐसा बड़ा शोबा जो कहीं ना कहीं मांद पड़ता नज़र आता था, लेकिन ARY QTV ने वो रोशनी इस वक्त पूरी दुनिया में फैलाई है कि आज हम देखते हैं, लोग TV पर बैठकर देखते हैं कि किस वक्त जो है वो कवाली आएगी और सिमा की महफिल पेश की जाएगी, और वो हुस्न इंतखाब को भी आप दाद दें कि बहुत ही खुसूसी सिलेक्शन होता है कि कहीं पर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मिसरा, कोई ऐसा लफ्ज़ ना हो कि जो गैर शरई हो। इतने एहतमाम, इतने प्रोटोकॉल, इतने ऑर्गेनाइज वे में जिस अंदाज से कवाली की खिदमत हो रही है, हम सलाम पेश करते हैं। बहरहाल हमारे साथ मज़ीद मेहमानान गिरामी जुड़ेंगे और ईद की खुशियों को दोबाला करेंगे, और एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, लेकिन आपको बताएंगे, वरना सरप्राइज़ नहीं रहेगा। सस्पेंस, क्यूरियोसिटी बरकरार रहे। आसमान नात के ताबिंदा सितारे हैं जो हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद, तो इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे, आपसे होती है मुलाकात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियाँ, मुसर्रतें, रहमतें, बरकतें बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ड्राइंग रूम हमारा सेट है, कुछ मेहमानान गिरामी मौजूद थे जो अब यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। मज़ीद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, दुनियाए कव्वाली के दो नामवर फ़नकार, यकीनन जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कव्वाली में। सबसे पहली शख्सियत मुइन अजमेरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। की तरफ से और पूरे पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारा बड़ा साथ रहता है भाई के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली दफ़ा भी रहा और इस दफ़ा भी माशाल्लाह रहा। क्या बात है। और अल्लाह ताला इस साथ को, ये मोहब्बतों के इस सिलसिले को इसी तरह जारी हो वो सके, दायम रखे अल्लाह। आमीन सुम आमीन। दानिश मुमताज़ एक और नामवर कव्वाल इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन असल में ARY QTV और आप लोग लाजिम व मलजूम हैं। बिल्कुल। जहाँ ARY QTV है वहाँ पर आप लोग हैं, जहाँ पर आप लोग हैं वहाँ ARY QTV है। और जिस अंदाज से आपने जो अदब है असल, उस अदब को मलहूज़ रखते हुए ARY QTV के तवस्सुस से पूरी दुनिया में कव्वाली को जिस तरह एक मोहब्बत के पैगाम के तौर पर पेश किया है, हम सब आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और यकीनन खुशी के मौके पर जब आप आते हैं तो हमने नाजरीन से भी कहा कि ईद की खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। यहाँ पर सबके बैठने का मकसद अपने नाजरीन से खुशियों को बांटना है। जब हम ब्रेक पर थे तो यकीनन आज कुछ सीक्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि फसी भाई ने मुझे बोल दिया है कि बस आज कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और आपने बियॉन्ड दी लाइन जाकर आपने ऐसा माहौल रखना है कि भाई वाकई हमारे नाजरीन को लगे कि हम इन सब के साथ बैठकर ईद की खुशियाँ एक दूसरे में बांट रहे हैं। तो बातचीत जो चल रही थी वो फसी भाई की और शाहिद मसरूर साहब की चल रही थी, तो मैं चाहता हूँ फसी भाई ज़रा इस पर रोशनी डालें। नहीं, शाहिद भाई कहते हैं ना बचपन से, बताए ना बचपन वाली बात। मैं आपके बचपन की, अपने बचपन अपने बचपन मैं दूसरी बात की बात कर रहा हूँ फसी भाई, वो ये थी कि शाहिद भाई ने आपसे सवाल किया कि आप अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, तो आप जवाब देने वाले थे, तो मैंने कहा था फसी भाई वो हमारे नाज़रीन को भी अगर आप बता दें तो ज़्यादा। कैमरा नहीं दे पाएंगे, ये कोई ऐसी बात करेंगे जिसमें मुबालगा रहे। चलिए बताइए, आप मुझे देख के मुस्कुराते क्यों? क्या फरमाइएगा? आपका चेहरा ही मुस्कुरा ऐसा क्या है। आपने बात बदल दी? आप बात बदल दी आप? आपके चेहरे को देखकर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है, चलिए मान लिया सर, बात बदल दी ना आपने। अच्छी महसूस होती है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो मैं कहता नहीं हूँ। नाजरीन, हाँ।
आज कह दीजिए बड़े बड़े मुस्कुराते हैं, बच्चे डर जाते हैं। बड़े मुस्कुराते बच्चे। आप इनको देख के ना, दो फर्क मुझे है। देख के इसमें भी दो बातें ना, कि हंस के देख रहे थे या देख के हंस रहे थे। वाह 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 वाह, जबरदस्त। तो देख के हंस रहे थे। कमाल बात। ठीक है नाजरीन, कितनी जहतों से बात हो गई, आए बाएं शाएं हो गई, लेकिन जो राज था ना फसी भाई ने वो राज ही रखा है और ये हम सबको पता है। लेकिन यकीनन हम ऑफ दी कैमरा पूछेंगे, ईद का दिन है, यकीनन ये रात भी पूछ लेंगे कि शाहिद भाई को इंशाल्लाह ऐसा जवाब मैं मिल तो जाएगा। फसी भाई को जब देखता हूँ तो मेरे दिल से दुआ निकलती है, क्योंकि ये फैक्ट है कि मैंने फसी भाई को जो है वो तरक्की करते और उस मकाम तक जाते हुए देखा है। वाह वाह वाह। वो आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में इनका है और बड़ा रश्क आता है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ा मकाम दिया और इसमें इनके वालिद मोहतरम का बहुत बड़ा हाथ है। माशाअल्लाह। जी साहब, उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं की दुआएं। बेशक, बेशक। अल्लाह ताला गरी के रहमत करे और और एक यकीनन नन्हे- ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है जो आज तनावर दरख्त बन चुका है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये हमारा एक मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, ये मैं नहीं कह रहा, एक छोटा सा बच्चा देखें ये पीछे छुपा के रखा हुआ है हमने, ईद के मौके पर सरप्राइज़ है आपके लिए। और कैसे हैं आप, खैरियत से हैं आप? ये हमारा जो रमज़ान में एक सेगमेंट होता है बच्चों का, चांद तारे, ये उसमें भी मौजूद रहते थे। अभी मुझे नहीं पता ये मौजूद रहे या नहीं, लेकिन बहरहाल बहुत टैलेंटेड बच्चा है और क्यों ना हो, क्योंकि वालिद गिरामी इतने टैलेंटेड, इतने वर्सेटाइल, माशाल्लाह इतनी इल्मी और अदबी शख्सियत, शाहिद मसरूर साहब के साहिबजादे हैं, नूर नज़र हैं, लख्त बहुत जिगर शुक्रिया। हैं। इन्हें अभी आप- वक्ती तौर पे हमने रोका है प्रोग्राम्स वगैरह से, क्योंकि माशाल्लाह ये हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह, हमने इनको सुभान रोका अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अब आप माइक उठाएं क्योंकि आप तो यूज्ड टू हैं, और अपना तारुफ दें। आप बताएं आप कौन हैं? आप कौन है बताएं यार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजहान शाहिद मसरूर है और मैं हाफिज़ बन रहा हूँ। तो मैं आपको आज एक कितने पारे हो गए आपके? ईद मुबारक तो बोल दो पहले यार। ईद मुबारक आप सबको। नहीं मुफ्ती अच्छे से साहब बोलो ना। कुछ पूछ रहे हैं आप? अभी तक ईद ही नहीं मिले ना, इसलिए जोश आप नहीं आया सबको बच्चे ईद को। मुबारक। ईद ही देंगे इसी के बाद देखिए जोश energy। आएगा। आओ हमारे मैं पास। तो इनको लेकर इसलिए आया हूँ कि ईदी मिलेगी इनको। हाँ, अब आपने मुस्कुरा के बताना है, ठीक है? मुस्कुरा के ईद। यार आपके मैंने कितने पारे हो दिहाड़ी गए? पे रखा हुआ है। वो लाइन है। आप सबको ईद मुबारक। माशाअल्लाह। बाबा ने ईदी कितनी दी अब? 500 रुपीज़। अल्लाह। 500 और इतना डरते डरते बता रहे हो। सबसे वापसी लेते लेते जबरदस्त, लाइन बोलिए, जबरदस्त। और लाइन बोलिए। क्या बात है। और मैं अगर एक शेर के साथ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं, जो हमारे दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, हमारे बहुत प्यारे होस्ट हैं। डब्बे में डब्बा, डब्बे में इंजेक्शन, ईद के दिन वलीद के एक्शन। तशरीफ़ फरमाएं, क्या फरमाइएगा सर? कैसा मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, ये बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा इनाम कि एक तो ये प्लेटफॉर्म ARYQ TV ने जो हम तमाम को फराहम किया, और मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है आज इतनी खूबसूरत हस्तियों के साथ हम यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं। फसी शाह साहब यहाँ पे बैठे हैं, शाहिद भाई बैठे हैं, दीगर तो हम लोग, मैंने अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से सोचा नहीं था कि मैं इन लोगों के दरमियान कभी ऐसे किसी प्रोग्राम में बैठूंगा। अच्छा, ये सब मोहब्बत है अपनी जगह, ये अदब अपनी जगह, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप रिवायती मेहमान बनने की कोशिश करेंगे। सही। थोड़ी सी होस्टिंग के जौहर दिखाने हैं आपको। माना कि आप एज अ गेस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन आप हर हाल में जब भी कैमरे के सामने ARYQ TV पर हैं तो आपको एज अ होस्ट ही लोग देखते हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा लतीफ़ा, कोई ऐसी शरारत तो बचपन में कर रखी हो और आज भी अगर याद आती हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती हो? ऐसी कोई शरारत है नहीं, बस एक हमारे में खामी कह लें कि थी कि हम बचपन में जो है वो कमरा लॉक करके सो जाया करते थे। तो अब एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि हमने रात गुजार दी, मतलब तकरीबन रात 9-10 बजे हमने कमरा लॉक करके हम सो ये गए। शरारतन नहीं होता था, ये आदतन होता था, इसलिए आपने कहा अब आप इसे आदत समझ लें, लेकिन उससे परेशानी जो घर वालों को होती थी वो एक शरारत भी समझ लें। जिस तरह से वो उठाते थे, वो शुक्र है कि हमारे कमरे के बाहर जो एक वो खिड़की थी कमरे में, तो वो उस तरफ से वो स्प्रे बॉटल के थ्रू चाचू ने जो पानी मार के उठाना, उससे भी अगर हम उड़ गए तो वो गेट खुल जाता था, वरना वो गेट पूरी रात बंद रहता था। लें। यानी कि ARYQ TV के मैनेजमेंट को इस बात को बड़ा मलूज़ खातिर रखना होगा कि अगर कोई मॉर्निंग प्रोग्राम वलीद भाई को देना हो तो फिर आप 10 दफ़ा सोच लिएगा, ऐसा ना हो यहाँ से भी दूसरा ये कि अगर बोतलें कोई बरसानी नहीं, एक पड़े। और भी तो, अगर कोई ऑफिस है तो उसके अंदर कुंडी नहीं रखिएगा। सी भाई आप देख रहे हैं कितने सादा मिजाज लोग हैं, यानी कि इनके सबके बचपन शरारतों से बिल्कुल पाक हैं, दूर दूर तक किसी को कोई शरारत याद नहीं है। फसी भाई आप बता दें कोई अपनी शरारत। नहीं, मैंने तो ये पिछले दिनों शाहिद भाई से बात हो रही थी, मैं समझा कि ये मुझसे सीनियर हैं बज़्म तलबा के हवाले से रेडियो पाकिस्तान। तो जब मैंने बताया कि मैंने इनके साथ काम किया तो सन्ना बताइएगा, सन्ना बताइएगा। सन्ना बताइएगा वरना सन को पता चल जाएगा और वो अम्मी को बता दे। नहीं, ये बताना चाह रहे हैं कि ये सीनियर हैं। सन्ना लेकिन बताइए। मैं आपको सीनियर समझ आप रहा था। आज भी 18 साल के लगते भाई हैं। सुभान अल्लाह। आप पूरी बात कर देना कि सन को नहीं बताइएगा वरना ये मदर को बता देगा जाकर। अच्छा, आप अपनी शरारत बताइए।
फसी ये भाई शरारतें तो हो रही हैं, ये कौन सा अच्छी बातें हो कि रही मैं हैं? तो एक बात कहता हूँ कौन सी अच्छी बातें हुई? शरारतें तो कर रहे हैं हम। मैं तो एक भाई बात भाई का मकसद है कि मुझे थोड़ा सा आप दूर रखकर कोई शरारत बताएं जिस शरारत में मैं अच्छा, शामिल। जब भी ईद शो इनके साथ हुआ है तो मेरा इनका ही टाकरा हुआ है। पिछले ईद शो भी देख लिया। वैसे मैं तो एक बात कहता हूँ, कहा जाता है कि अगर माँ आपके जिस्म पे जिस हिस्से पे मारे, मैंने कहीं सुना, तो इससे जन्नत में जाता है। मैं कहता हूँ मैं तो पूरा का पूरा जन्नत में जाऊंगा। सुभान अल्लाह। इतनी मार खाई आपने। इतनी मार खाई। माशाल्लाह। शरारत तो सब करते हैं बचपन में, आपने भी की होगी, आप छुपा रहे हैं। लेकिन मुझे देखें इतनी मार नहीं पड़ी जितनी आपको पड़ी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ऐसा हाल नहीं हुआ जितना शाहिद भाई ने खुद एतराफ़ किया है, और यकीनन बर्तनों को जितना मांझो उतना चमकते हैं, और आज माशाल्लाह आप छोड़ चमक दिए रहे हैं। जाते थे। ये उसी मार का नतीजा है माशाल्लाह। मोइन भाई क्या फरमाइएगा, मज़ा आ रहा है आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कोई बड़ा फॉर्मल प्रोग्राम हो? इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है इनसे। फसी भाई हैं, शाहिद भाई हैं और तमाम दीगर लोग, और इनके मुताबिक जो हमारी एज है वो इनसे तजुर्बा हासिल करने की है। सही। बचपनों की जो शरारतें वो सबकी रहती हैं, लेकिन इनको पता है बचपन और पचपन का क्या मामला है। नहीं, अगर आप बचपन की बात बता देंगे और ईद का मौका है, और अगर कुछ चेहरे उदास हैं, मुस्कुराहट आ जाए, तो सर सवाब मिलता है इसका भी फिर? बचपन तो सबका ही, मैं कहता हूँ कि एक जैसा ही होता है। अब हम दुआ भी उससे कर रहे लेकिन हैं, ये है कम कि से कम आपके शरारतें ज़्यादा बचपन से होती कोई है। शरारत अखस हो जाए। हमारी जो शरारतें हैं वो हमारे जो वालिदैन हैं उनको ज़्यादा पता है, हमें इस चीज़ का ज़्यादा इल्म इस वजह से नहीं कि हम बचपन में छोटे थे कि ज़्यादा याद नहीं रहा। मोइन भाई का मकसद है जिन्होंने भुगता है उनको याद है, हम करने वाले थे। एक बात समझ में नहीं आती कि अक्सर ये होता है कि वो बहुत बुजुर्ग हैं, व्हील चेयर पे हैं, और वो कह रहे हैं मैंने आपको बचपन से सुना है। अब पता नहीं वो अपना बचपन बता रहे हैं, मेरा बचपन बता रहे हैं। नहीं, वो बीमार जल्दी हो गए थे। अच्छा मैं बताऊं फसी भाई, मुझसे भी बाज़ लोग कहते हैं हम आपको बचपन से देख रहा हूँ, तो उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि मैं क्योंकि बचपन से रेडियो टीवी पे आ रहा हूँ, तो आप यकीनन मुझे देख रहे हैं। मैं बचपन में काम कर रहा था, आप सिर्फ देख रहे थे। सही बात, सही बात। और आप भी बचपन से आ रहे हैं ना? बचपन से ही आ रहे हैं। बचपन से आ रहा हूँ, तो लोग अगर बचपन से देख रहे हैं, आपने भी बच्चे थे। आपने फसी भाई की स्मार्टनेस चेक करी? क्या बात फसी भाई, मैंने बोला आपने स्मार्टनेस चेक करी फसी भाई की? कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ नहीं बल्कि सब कुछ कह गए। जबरदस्त। एक बात सर क्या फरमाइएगा, मज़ा आ रहा है आपको हमारे ड्राइंग रूम में? क्या बात। हमने कोई मतलब फॉर्मेलिटी नहीं रखी हुई कि हम एक सवाल करें दूसरा, रिवायती जो प्रोग्राम बिल्कुल ऐसा ही। चैट है, एक गेट टुगेदर है, ही। लोगों को महसूस हो कि आज जिनको हम सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, आज उनके साथ बैठकर ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। क्या फरमाइएगा? बस यही बहुत अच्छा मौका है, और तमाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और स्पेशल जो थैंक वो हाजी रऊफ साहब, बेशक इन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया कवालों को, नात ख़वानों को और भी उलमा इकराम को, और ईद की खुशियाँ बांटने का यह सुनहरी मौका, और इतने अच्छे लोगों के साथ बैठना नसीब हुआ, गुफ्तगू सुनना नसीब हुआ, तो ये हमारे लिए सादत की बात। ठीक है, ज़बरदस्त। और मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे रमज़ान दहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए का जो जूरी पैनल था, तीनों ही मुनसिफीन, उनसे हम एक एक ऐसी बात आज लें जो हमारे आने वाले 11 महीने काम आए। क्या फरमाइएगा शाहिद भाई? देखिए, बात ये है कि हम सिर्फ रमज़ान को ही समझते हैं कि नेकी का महीना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों को बदल लें, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, और बजाय इसके कि हम तजुर्बा करने के बाद सीखें, दूसरों के मुशाहिदात से हम सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव ले आएँ, क्योंकि बाहर तौल लाना पड़ता है। तो 12 महीनों को अगर हम रमज़ान मुबारक जैसा बना लें ज़िंदगी में, शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल जाए। ज़बरदस्त। रिजवान भाई क्या फरमाइएगा? अच्छा, इस सिलसिले में मैं सोसाइटी के एतबार से बात करूँगा कि हम लोग बहुत जल्द मुतासर हो जाते हैं, और इस सिलसिले में कि जब आपकी शख्सियत की मौत वाक़ हो जाती है तो आप अपने गैजेट से लोगों को मुतासर कर रहे होते हैं कि ये घड़ी 5 लाख की, ये मोबाइल 8 लाख का। शख्सियत को की मौत वाक़ ना होने, ताकि लोग आपकी शख्सियत से मुतासर होकर रिज़ा निभाएं। और दूसरी बात यह है कि अपनी गलतियों का एतराफ़ कीजिए और दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज। ठीक, हम बेहतरी की जानिब इस सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त मैसेज है, क्योंकि आजकल हमारे माशरे में एक ख़राबियाँ जो हैं, उसमें एक बड़ी ख़राबी ये भी है कि हमने अपनी गलती मानने को बहुत बड़ा जुर्म समझ लिया, जबकि गलती मान लेना ये बेहतरी की तरफ एक कदम होता है। ज़बरदस्त मैसेज दिया रिजवान भाई आपने। आशकार भाई क्या फरमाइए? देखिए, रमज़ान के हवाले से बात करें, अभी गुजरा है महीना। रमज़ान एक्चुअली इबादत का महीना है। ठीक, और इबादत से ज़्यादा फ़ोकस रब ने दी है मामलात को। रमज़ान में इबादत लोग कसरत से कर रहे होते हैं, मामलात भी उसी कसरत से ख़राब कर रहे होते हैं। ओ हो।
उसमें आप महंगाई देख लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी देख लें, हक तलफ़ी तोहफ़ा, देख लें। फ्रॉड, हक तलफ़ी, हर चीज़ चल रही है। मेरी एक गुजारिश यही है, इबादत को रखें अपनी जगह, इबादत अपनी जगह है, लेकिन मामलात को फ़ौक़ियत दें। सबसे पहली पकड़ मामलात के हवाले से हो। ज़बरदस्त। अच्छा, जो ये रिवायती मैसेजेस हैं हमारे, ये इनकी अपनी जगह ये मुक़द्दम बिल्कुल, और ज़रूरत है इस अमर की कि ये बात की जाए, मैसेज पहुंचाया जाए, पैगाम दिया जाए। वलीद भाई, मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज इस अंदाज से दें, जो नौजवान, मैं देखता हूं बड़ी मोटिवेशन है बच्चों में, नौजवानों में, कि वो होस्टिंग की तरफ आना चाहते हैं। वो क्या चीज़ है जो आपको होस्ट बना चुकी है? अगर वही बात, ये सीक्रेट आप शेयर करना चाहें हमारे नौजवानों से। सीक्रेट ऐसा नहीं, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो छोटा नहीं समझें। ठीक। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको भरपूर तरीके से अवेल करें। आपको नहीं पता आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितनी बड़ी जो है वो कामयाबी लेके आ सकती है। ज़बरदस्त। और हकीकत में वो कहते हैं कि गाते गाते इंसान गवैया बनता है, और हकीकत यही है कि आप कहीं से भी स्टार्ट मिले ना, स्टार्ट लें ज़रूर। वलीद भाई, आप सेकंड करेंगे मेरी बात को। हमें आज भी याद है, हम स्कूल में असेंबली होती थी ना, तो हमें बड़ा ज़ौक़ व शौक़ होता था कि हमें किसी भी चीज़ में हिस्सा मिल जाए, बस पार्टिसिपेशन मिल जाए। क्योंकि जब आप माइक लेकर कॉन्फिडेंटली एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ लोगों को, पब्लिक को फेस करने का गुर सीख लेते हैं, तो ये एक कामयाब तरीन कदम होता है टूवर्ड्स होस्टिंग। चाहे आप नकीब महफिल बने, आप मेज़बान महफिल, मेज़बान प्रोग्राम बने। बहरहाल ज़बरदस्त मैसेजेस हैं हमारे सारे ही मेहमानों की तरफ से। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जनाब शाहिद मसरूर साहब, और यकीनन मैं दिल से कह रहा हूँ, हमेशा आपको देखकर मसरूर होते हैं हम। और आप जब भी आते हैं हमारे ईद के शो पर, यकीनन हम चेहरों पर मुस्कुराहट, हमें पता होता है कि आप भिकेर रहे हैं, और ये अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके साथ तशरीफ़ फरमा रिजवान जैदी साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त सर मैसेजेस भी दिए, बहुत प्यारी गुफ्तगू की। अल्लाह ताला मोहब्बतों का ये सिलसिला कायम व दायम रखे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अशकार भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। वलीद भाई, बेस्ट ऑफ लक, और आगे आगे देखिए होता है क्या, हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, हमारी बहुत दुआएं। मज़ीद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, एक सरप्राइज़ है, लेकिन वो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। बस इतना बता देते हैं आपको, थोड़ा सा सरप्राइज़ आपको हम रिवील कर देते हैं कि अभी हम जिस सेट पर हैं, हम इस सेट के दूसरे हिस्से पर आपसे मुलाकात करेंगे, एक नए अंदाज से आपसे मिलेंगे, मज़ीद मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे इंशाअल्लाह। भरपूर अंदाज से ईद की खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। आपसे होती है मुलाकात एक ब्रेक के बाद।